Hello dear student, I am Varun Nishad, your chemistry teacher. Here I am going to explain about the question paper, that is chemistry. Chemistry, class 10th, A and B. A and B. The question number. The chemistry segment contains 35 marks, in which the 10 MCQ type question, which carry 1 into 10, and 10 very short question, that is 2 into 10 is equal to 20, and one long answer question 1, that is 1 is to 5 is equal to 5. So total that is 35 marks. So there is a some machine during the printing of paper, so I am try to correct this questions. So listen me carefully. Starting from MCQ, the question number one, that is, where of the following is not a physical change? Your option is boiling of water to given water vapor. So water vapor लिखा हुआ है, water apple. ये मिसप्रिंट है, you have to vapor. Correct, the correct is ये मिसिंग है पेपर में, तो करेक्ट वर्ड है ये vapor है, means boiling of water to given water vapor. Second है melting of ice to give water. Third है dissolution of liquefied petroleum gas, that is liquefied petroleum LPG, that is liquefied petroleum gas. The complete sentence of this the LPG. Fourth, dissolution of salt in water. Now question number 2. In question number 2, that is given. Question number 2, which among the following is one double displacement reaction? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी. फर्स्ट है PbCl2, Pb plus CuCl2. सेकेंड है Na2SO4 प्लस BaCl2. बाद में ये रिएक्टर जो बनाता है PbCl2 प्लस Cu, and after that it form 2NaCl plus BaSO4. थर्ड ऑप्शन है आपका C plus O2 give rise to CO2. फोर्थ है आपका CH4 plus 2O2 CO2 plus H2. अब इसके बिहाफ पे आपके ऑप्शंस हैं A, that is फर्स्ट एंड फोर्थ. बी में यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ओनली लिखा है, ओनली, जो कि रॉन्ग है. यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो है वो सेकेंड ओनली लिखना चाहिए, सेकेंड ओनली. एंड सी फर्स्ट एंड सेकेंड. डी थर्ड एंड फोर्थ. So this is your appropriate
sentences in your question paper. Here the missing of this portion. I am correct here. So now come to the next question. That is question number 3. Electrolysis of water is a decomposition section. Decomposition section नहीं है यहाँ पे, decomposition reaction. Electrolysis क्वेश्चन नंबर 3 है electrolysis of water is decomposition reaction. Decomposition section लिखा हुआ है, section जो कि wrong है. Your right sentence is that is decomposition reaction. Decomposition reaction of the hydrogen and oxygen gases. Of the hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water. During electrolysis of water. Electrolysis of water. Your option is A, that is first, sorry, that is 1:1. अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो गैसेस निकल रही हैं, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है A 1:1, B 1:2, C है आपका 2:1, D 4:1. तो यहां पे जो मिसिंग था मैंने यहां पे करेक्ट कर दिया है. जो C है, C का जो 2:1 होगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. यहां पे क्या दिया था, ऐसे दिया था 12:1. यहाँ ऑप्शन सी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट किया. C का जो है 2:1 मैंने करेक्ट किया यहाँ पे. तो यहाँ पे आप इन चारों आंसर्स में से कोई एक आंसर राइट होगा, उसमें से आपको चूज करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for long time? Which of following gas can be used? Which of following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for long time? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन. सेकंड है, जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेंटेंस है वो एज इट इज है. जो इसके ऑप्शंस हैं वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑप्शन आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी है आपका कार्बन. ना जो सी ऑप्शन यहाँ पे सी मिसिंग था, कार्बन डाइऑक्साइड स्पेलिंग भी रॉन्ग था, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, और यहाँ पे डी है, डी ऑप्शन है आपका हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ये आपके ऑप्शंस हैं. इस चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप चूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? एंड राइट इट हियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ 5 which of the following process involve chemical reaction? Involve chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर in a gas cylinder. In a gas cylinder. सेकेंड ऑप्शन है अपना लिक्विफिकेशन। ये आपका जो राइट आपका स्टेटमेंट है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। थर्ड है ऑप्शन आपका कीपिंग पेट्रोल टू चाइना डिश इन ओपन। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन। डिश इन ओपन। फोर्थ ऑप्शन है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हीटिंग copper wire in the presence of air। यहाँ पे जो पॉइंट मिसिंग था मैंने यहाँ पे करेक्ट किया, जो स्टेटमेंट है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। यहाँ पे लिखा लिक्विफिकेशन डैश ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आपको जितने भी सारे रिएक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शंस है मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट है जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग are combination reaction। combination reaction क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीपल एमसीक्यू का है। तो देखते हैं ऑप्शन इनकी क्या है। पहला ऑप्शन है 2KClO3 जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन है। KClO3 उनकी ग्रास को क्या बना रहा है, 2KCl। यहाँ पे 2 जो है ऐसे छोटा करके लिखा है, जो कि गलत है। पोटेशियम को हमेशा कैपिटल लेटर में प्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2। नाउ सेकंड दैट इज MgO। यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा, MgO MgO इसका फुल टॉइस। Mg लिखा है ऐसे स्टेटमेंट है, तो उसका फुल टॉइस। थर्ड है आपका ऑप्शन 4 एयर प्लस 3O2 give rise to 2 air to O3। Next है fourth one, that is Zn plus FeSO4 will give rise to ZnSO4 plus Fe।
ये जो है करेक्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है आपके लिए, यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें से ये ऑप्शंस दिए हैं आपको। ए जो है वो क्या है, 1 ए जो ऑप्शन है इसमें से 1 एंड सेकेंड, सॉरी 1 एंड थर्ड। यहाँ पे ऐसे है बी जो है आपका थर्ड एंड फोर्थ। सी सेकेंड एंड फोर्थ। सी पे यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, यहाँ पे मिसिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है दूसरा। नेक्स्ट डी में क्या लिखा है, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें से चूज करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से यानी कि क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। केमिकली रस्ट इज, जो 7th क्वेश्चन है, केमिकली रस्ट इज। केमिकली रस्ट इज, रस्ट जो है आयरन में होता है, तो केमिकल रस्ट पहला ऑप्शन है आपका फेरिक सल्फेट। बी ऑप्शन है आपका फेरिक ऑक्साइड। आपका सी ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे अब दिया है सी, और सी को यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया था, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। डी है आपका ऑप्शन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपके चारों ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द मेन कॉन्केव ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे जो मेन कॉन्केव जो लिखा है, जो वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, द मेन causing of rancidity। मेन कॉजेज यहाँ पे लिख सकते हैं, मेन कॉजेज ऑफ रेसिडिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। बी है आपका एंटीऑक्सीडेंट। बी जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट। सी है आपका बैक्टीरिया। डी है आपका नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये आपको चूज करना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द मेन कॉजेज ऑफ रेसिडिटी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है अप्रोप्रिएट आंसर। और नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन। आइडेंटिफाई द chemical equation which represent the complete balance equation, which represent a complete balance equation।
complete balance equation for the reaction of BaCl2, that is barium chloride, with sodium sulfate Na2SO4 to produce barium sulfate, that is BaSO4 plus and सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें से आपको चूज करना है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन BaCl, reaction of BaCl that is barium chloride with sodium sulfate to produce barium sulfate and sodium chloride। अब इनके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखिए BaCl2 plus Na2SO4। ये तो ऑप्शंस में से कोई मिस्टेक्स नहीं है, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन क्लियर दिए गए हैं। और जिसमें से ऑक्सीजन छोटा है, ऑक्सीजन छोटा, सारे ऑक्सीजन छोटा है, इसमें माइंड करने की बात नहीं है। सारे ऑक्सीजन बड़ा होता है, ये बड़े ऑक्सीजन को इक्वल करिएगा सल्फर के, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल, जैसे BaCl2, कोई ऑप्शन नहीं है, BaCl2 है, Cl2 और Na2SO4। ये जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से जो सल्फेट जो ऐड करना है वो ऐसे नहीं लिखेंगे, आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, जितना बड़ा आपका सल्फर रहेगा उतना बड़ा आपका ऑक्सीजन रहेगा, और जितना अमाउंट रहेगा नीचे उसको लोअर केस में लिखेंगे। ये तो आपको कंफर्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें और क्वेश्चन एक रिपीटेड भी है, देखिए आपको करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन represent the combination reaction। combination reaction